خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 20واں باب 19ویں آیت سے 31ویں آیت تک۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا، تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح وچ میرے عزیزو، اج دی انجیل مقدس توما دا ذکر کر دیے، مقدس توما رسول دا۔ مقدس توما رسول دے بارے بہت کچھ کیا جاندا ہے، لیکن اکثر انہوں ڈاؤٹنگ توما یا شکی رسول کیا جاندا ہے۔ میں سمجھنا کہ وہ شکی رسول نہیں، وہ بڑا دلیر اور جرت والا رسول ہے۔ دلیر اور جرت والا۔ سب تو پہلے وہ نام دا ذکر کرنے، وہ نام ہے توما، لیکن انہوں توما کہہ کے نہیں پکار دے، عرف
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਥੋਮਾ ਉਰਫ ਦੀਦਮਸ। ਮਸ਼ਰਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਸਾ, ਘਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਪੂ। ਪੱਪੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਲਫੋਂਸ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੂਕਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਨਾਦਰਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, 7 ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਥੋਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਥੋਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਥੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਦਮਸ। ਦੀਦਮਸ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੜਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੜਵਾਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੜਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੜਵਾਂ ਭਰਾ ਸਨ। ਦੀਦਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੜਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਥੋਮਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੜਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਦਮਸ। ਬੋਲੋਗੇ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਦੀਦਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੜਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੜਵਾਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਭਰਾ ਜੜਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੜਵਾਂ ਨੇ। ਜੜਵਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੜਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਜੜਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਰਾ ਜੜਵਾਂ ਨੇ। ਥੋਮਾ ਜੜਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਥੋਮਾ ਬਹੁਤ ਜੁਰਤਮੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੱਲੀਏ, क्योंकि ज़रूर है कि इब्न इंसान दुख उठाए और कत्ल किया जाए। सारे पतरस शामिल करके सारे कहने लग पे ना है खुदावंदा उत्थे नहीं जाना। तो क्यों नहीं जाना? मरन जाना सी। उदों यूहन्ना दी इंजील पढ़ो, थोमा कहता है नहीं, आए हम इसके साथ चलें और इसके साथ मरें। जुरत है, दिलेरी है, कहता नहीं आओ जे ए जा रहा है तो फिर असी भी चलीए। दूजे पैर पिछां नूं खिंचण डे ने, वो कहता नहीं आओ फिर हुण इहदे नाल ही चलीए। यूहन्ना दी इंजील च लिखिआ आए हम इसके साथ चलें और मरें। ये जुरत वाला बंदा कह सकता है, दिलेरी वाला। दूसरा, जदों यसू मसीह सलीब उत्ते मर गया तो सारे दौड़ गए सन कि नहीं? दौड़ गए सन कि नहीं? सारे चले गए। एक ने विचों खुदकशी कर ली। किन्ने किन्ने? यहूदा ने। पिछे किन्ने रह गए सन? 11। ये 11 दे 11 दौड़ गए ने। तो क्यों दौड़ गए ने? इन्हों का ख्याल सी कि वह मसीहा जंग करने वाला है, असी फतह पावांगे, रोमी हुकूमत ते साडा कब्जा हो जाएगा, असी फतहमंद हो जाएंगे। ये ना होया तो छड़ के दौड़ गए। लेकिन एक गल बहुत अच्छी हुई है कि ये सारे जो दौड़ गए ने, ये जाके फिर एक कोई कमरे च इकट्ठे हो गए ने। किन्ने? 11। ते बाहर नहीं निकलते पे। क्यों नहीं बाहर निकलते? डर ते खौफ है। ते काहदा डर ते खौफ है? कि जो मुर्शद दे नाल होया है साडे नाल भी होवेगा। जो उस्ताद दे नाल कीता ने, उस्ताद नूं मार दिता है, सानू भी मार देणगे।
ਉਹ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੌਫ ਨਾਲ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 20ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ 11 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। 10। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਹੂਦਾ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ? ਕੌਣ? ਤੋਮਾ ਰਸੂਲ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ? ਰਸੂਲ ਤੇ ਸਾਲੇ ਡਰੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੱਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਕੌਣ? ਬੋਲ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ 10 ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋਮਾ ਜੇ। ਜੁਰਤ ਤੇ ਦਲੇਰ, ਜੁਰਤਮੰਦ ਦਲੇਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਨਾਲ ਢਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ, ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਵਾਰਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਯੋਹੰਨਾ 20ਵੇਂ ਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ठीक है, बड़ा जबरदस्त है, सुनियो जरा। यसू आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। 20वीं आयत, और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। यसू ने आपे भी आके की वहाया जख्मों दे निशान, शाबाश। सो यसू की पहचान की बन गई है? की बन गया है? जख्म। सलीब, सलीब यसू की पहचान है। असी सलीब तो मुनकर, यसू तो मुनकर, पहचान बन गई। इस वास्ते अगर यसू ने अपनी पहचान कराई है ते जख्मां दे नाल, ते जे थोमा ने सबूत मंगे ने, वो किहड़े मंगे ने? वो भी जख्मां दे मंगे ने। इस जरा गौर करियो, यसू अपनी पहचान किवें करा रहा है? जख्म विखा के। थोमा पहचान केड़ी मंगन दिया? सबूत, जख्म। कहता मैं यकीन करांगा पर वेख के। बहुत वारी ना असी लोगों की पहचान केड़ी मंगने आ? खुशियां खुशियां वाली। याद रखियो, दुनिया सब तो जबरदस्त पहचान जिहड़ी है ना, वो इंसान दे जख्म हुंदे ने। असी लोगों दे ना 100 कोई एहसान करे तो भुल जाने। हाँ जी, एक किसी ने कुछ किया है ना, कुछ जिदा दिल ते जख्म लगा होवे,
रूह ते जख्म लगा हुआ जाने ना, ये नहीं भुलना, ये नहीं भुलते। असी 100 नेकियां लोगों दियां भुल जाने आ, पर एक किसी ने कुछ बुरा किया होवे ना तो किहड़ा याद आउंदा है। असी आने यार इन्हें तेरे ते इन्नियां नेकियां कीतियां, तो आंदा नेकियां तो कीतियां सू, पर इन्हें ना उस वक्त मेरे ना की बुरा किया। लेकिन इत्थे बुराई की गल नहीं, इत्थे यसू की कुर्बानी की गल हो रही है कि यसू ने साडे वास्ते दुख सहे, सलीब उत्ते मर गया, तो जख्म जेड़े साडे लई सह ने ओदी पहचान बनिया। तो जदों फिर अगले इतवार यसू आया तो यसू ने की किया है, आ अपने अपनियां उंगलियां मेरे जख्मां च हत्थां च लफज इस्तेमाल है, मेखा च पा, ते अपना हाथ मेरी पसली च पा, ते गैर मुतकद नहीं बल्कि की बन मुतकद बन, ईमान लिया। उन्हें कहा सी ना मैं नहीं मानू, यसू ने क्या ईमान लिया। ये तो नहीं लिखिया कि थोमा ने उन्हें छुया, सामने खड़ा हो गया आके क्या है, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यसू ने एक पावरफुल गल कही, उन्हें आख्या थोमा मुबारक हो तुसी तो ईमान लिया है ना मैनू वेख के, पर तुहाडे नालों वो लोग कितने होर मुबारक ने जेड़े मैनू बगैर वेख्यों मेरे उत्ते ईमान लियाणगे। जिवें रसूलों ने यसू नूं वेख्या है, मैं तो नहीं वेख्या यसू नूं, तुसां वेख्या है? नहीं, उंज नहीं वेख्या। असी रसूलों दे ईमान तो नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त ईमान लियांदा है। रसूलों ने दसिया, अगोना ने दसिया, अगोना ने दसिया, असी किवें ईमान लियांदा है? शायद साडे माँ बाप ने सानू सिखाया, साडे टीचरां ने सानू सिखाया, मुनादा ने सिखाया, फादरां ने सिखाया, किसी ने सानू ईमान सिखाया है। असी डायरैक्ट यसू कोलों नहीं सीखिया। इस वास्ते अज यसू तुहानू ही कह रहा है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। जिवें रसूलों ने वेख्या उवें तुसां नहीं वेख्या, मैं नहीं वेख्या, पर असी ईमान लाए हैं सुन के। सुनने से क्या होता है? ईमान पैदा होता है। असी किवें सुनने हैं? खुदा दा कलाम, जो मेरी बातें सुनता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। असी अलतार तो यसू दा पाक बदन लेने, लो खाओ ये मेरा बदन और लो पियो ये मेरा खून है। कलीसिया के जरिए ईमान असी सीखिया है, माँ बाप के जरिए, स्कूल के जरिए, टीचरों के जरिए ये ईमान साढ़े तक पहुँचा है। लेकिन किस तरह पहुँचा है? नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त। अज मुकद्दस थोमा रसूल की गल कर रहे हैं। मुकद्दस थोमा रसूल हिंदुस्तान ते पाकिस्तान च आया, दूजे शागिर्द दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों च गए ने। एक बहुत ज़बरदस्त गल है, बाकी जिन्हें भी रसूल ने ना उहदे बारे बहुत कुछ लिखा है। वो ऐस मुल्क च भी गए ने, ऐस च भी गए ने, उस च भी गए ने। तो कदी कदी तारीखदान लिखते हैं कि 4-5 मुल्क ये बारे लिखे ने, यकीन नाल नहीं कह सकते कि सारियां च गया है। वो तारीख कहती है सिर्फ एक रसूल है जिहदे बारे पक्की गल है कि वह हिंदुस्तान गया है, बाकियों के बारे पता है, लेकिन 2-3 नाम लिखे ने, लेकिन 2-3 मुल्क लिखे ने, लेकिन थोमा एको ही धरती ते आया और वो हिंदुस्तान। जदों यसू मसीह आया उदों तो यदा नाम हिंदुस्तान ही सी, उदों पाकिस्तान वाली है कोई नहीं सी। पाकिस्तान कदों होया? 1947 च, पहले तो हिंदुस्तान सी सारा। ते थोमा रसूल आया इस पासे टैक्सला, बहुत बड़े खंडरात ने, गौरमेंट के बताहत ने, गौरमेंट की तवील च ने। कौन कौन गया उत्थे? भाई
ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੰਡਰਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋਮਾ ਰਸੂਲ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਲਤਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਇੰਨੀ के। ਉੱਥੇ हुकूमत पाकिस्तान ने लिख के लाया, यहाँ पर हज़रत ईसा का हवारी थोमा रसूल मुनादी किया करता था। चलो इस मुल्क से इतना भी बड़ा है, मन्नत है ना, तारीख तो है। और किस वक्त आया? एक बादशाह सी जिहदा नाम है गंडा फारस। पहलों बहुत सारे लोग कहते सन कि ये वाली गल जिहड़ी है ना, ये सिर्फ कहानियां दी गल है, इस नाम का बादशाह कोई नहीं सन। बहुत अच्छा है कि उत्थों ही टैक्सरे दे विचों हुण सिक्के मिले ने, और उहदे ते मोहर किहदी है? गंडा फारस दी। सो हुण कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस बादशाह दे वक़्त दे विच जिहदे नाम दे सिक्के भी ने, मुकद्दस थोमा रसूल इत्थे आया, मुनादी की थी। और मुनादी करदा करदा हिंदुस्तान दी एक रियासत है केरला, उत्थे जाके शहीद होया। अज भी हिंदुस्तान की एक रियासत है केरला, उत्थे जिहड़ी अक्सरीयत है वह मसीहां दी है, और पढ़े लिखे लोग ने, और वो अपने आप नूं मुकद्दस थोमा रसूल दे मसीही कहंदे ने, मुकद्दस थोमा रसूल दे। और उही जगह जिथे मुकद्दस थोमा रसूल शहीद होया, शहादत हुई, कतल करवाया गया सी, और उत्थे ही दफन किया गया है केरला स्टेट दे विच। मैं थोड़ी जी एक गल दस के की पैगाम देना चाहना, इस मुल्क दे विच, इस धरती ते जिन्हों असीं हिंदुस्तान पाकिस्तान कहने आ, ईमान दे विच साडा मुरब्बी कौन है? मुकद्दस थोमा रसूल, थोमा रसूल। सो सानू जुरतमंद रसूल मिले, जिहड़ा डर के अंदर नहीं सी बंद होया। वो रसूल है जदों 10 अंदर सन तो एक कल्ला ही कित्थे सी? बाहर सी। सो अज मैं एक पैगाम देना चाहना, सानू जिहड़ा ईमान दा जरिया मिलिया है ना, वो जुरत की है। मैं अज ये खुली जी गल करना चाहना, सच्ची गल है, पाकिस्तान च मसीही होना बहुत वड्डी गल है, चैलेंज है। अज ना मुकद्दस थोमा रसूल दे इस पैगाम ते अज 2 गल्लां करना चाहना वा, 2 पैगाम देना चाहना। नंबर 1, सानू जुरतमंद रसूल मिले, घबराइए ना। हुण इस धरती ते जो भी होवे जिवें भी होवे, असी यसू दे गवाह हां। आमीन। जान जाए, हाँ, हुण ये गल इत्थे आ गई है। अपने ईमान च ना कायम रहना। मुश्किलात आनगियां, आ रही ने, कायम रहना, डरना नहीं, खौफ नहीं करना, अपने ईमान च ना मजबूत रहना है। ईमान च मजबूत किस तरह रहना है? खुद भी अपने बच्चों की तरबियत करनी है कि डरियो ना, घबरायो ना, ईमान दे विच मजबूत रहना, अपने ईमान की गवाही देना। जान जाए पर ईमान ना जाए। पहली मेरी गल ये वे। दूसरा, ये जुरत का मतलब बेवकूफ़ी नहीं। अज मेरा दूसरा पैगाम जे, जुरत करना बेवकूफ़ी नहीं। यसू मसीह ने क्या सी, इस दुनिया च रहना किमें में, यसू ने बड़ा कमाल का ढंग सिखाया। कबूतर की मानद बोले बाले और सांप की मानद। हाँ, उन्हें आख्या, यसू ने क्या सी, कबूतर की मानद बोले बाले पर सप वांगू होशियार। मैं नहीं क्या, यसू ने क्या पा के झील च, ये जीन का ढंग है।
मैं समझना पाकिस्तान च यसू की ये गल नूं ना अपनाना पएगा। कबूतर की मानित बोले बाले और शाम की तरह होशियार, बेवकूफ नहीं। मतलब इहदा अगर असी ईमान की वजह ना मुश्किलात आमीन, जान जाए पर ईमान ना जाए, पर जे असी अपनी बेवकूफ की वजह ना लाना वो नहीं यसू कहता ना। एक अप्रोच है जीन दी, आ बैल मुझे, हाँ वो नहीं यसू ने तालीम दी ना। आ बैल मुझे मार, ये जिंदा रहने की अप्रोच, ये जिंदा रहने का तरीका कर यसू ने नहीं सिखाया। यसू ने तो आख्या ना कबूतर वांगू भोले भाले भी रहो पर होशियार भी बन के रहो। खुद ही नहीं कि आ मुझे मार ना, यसू ने यह नहीं सिखाया। अजकल दोनों ही हो रहे हैं। एक जगह वाकई साढ़े ते मुश्किलात ने तो असी अपने ईमान नूं कायम रखे हाँ, आमीन। लेकिन कई बार ऐसे कुछ केसेस हो रहे हैं कि सच्ची गल है साढ़े अपने लोग समझते हैं मैं गवाही दे रहा, पर तुसी गौर करो तो गवाही नहीं, किते बेवकूफ़ी हो रही है। यसू मसीह ने ना एक बड़ी पावरफुल गल हो रखी। यसू ने क्या सी, अपने मोती सूरों के आगे मत रखो। क्यों? जे रखोगे तो की करेंगे, अपने पैरों हेठा की करेंगे, रोल देंगे, रोन देंगे। यसू ने नहीं कहा कि तुसी अपने मोती खिलारो, कोई गल नहीं जो होंदा है होन दिओ ना। यसू बड़ा ज़हीन सी, सच्ची गल है, खुदा भी सी, लेकिन अगर उन्होंने इंसान होंदा मैंने वेरी इंटैलीजेंट मैन, वेरी स्मार्ट। अगर अज की जबान में इस्तेमाल करा ना, वेरी स्मार्ट। ने क्या अपने मोती सूरा के ना पाओ। क्यों? सूर नूं की पता मोती की है। पंजाबी च की कहते हैं, सूरा नूं की खजूरा ना। गल वही है जिहड़ी यसू ने कही है, सूरा नूं की खजूरा ना। यानी सूरा के सामने है की है, मोती है कि नहीं? खुदा दा कलाम मोती है कि नहीं? ना पाओ। क्यों? जिन्हों कदर का ही नहीं पता वो सामने ना पाओ। लेकिन कुछ साडे ऐसे तालीम दे रहे हैं, ऐसे नौजवानों को कुछ तरबियत करन रहे हैं, मैं समझना वा ये दुरुस्त नहीं। अपने मोती सूरां दे सामने ना पाओ। मैं आज कहना वा नहीं, सांपों की तरह बोले बाले, लेकिन होशियार भी रहो। वो कहन जो डै नहीं मैं नहीं तो ना करो। क्यों मोती डै और रोलन? मुश्किल ये बन गई है, हुण हर बंदा ही पास्टर बन गया, यही रौला है। फिर भी कुछ ख्याल कर लो, जेड़ा तो कहन दिया ना ओ मेरे लिए दुआ करो, भाई करो, फिर भी जगह देख लवो। सांपों की तरह होशियार भी। तो फिर जे इहो जी गल है आ बैल मुझे मार, तो फिर मैं नहीं समझदा ये कोई शहादत है ना। शहादत है वे कि तुसी सच्चे भी हो, सच्चे हो, ईमानदार हो, दयानतदार हो, फिर भी मसीह की खातर या मसीह होने की खातर तुहाडे ते जुल्म, तुहाडे ते मुश्किल आवे, मैं उन्होंने शहादत कहना वा उन्होंने। लेकिन ये शहादत नहीं है कि धक्के ना आ बैल मुझे मारना। सानू अपने बच्चों की ना हुण कुछ तरबियत करनी है, तरबियत करनी है, उकसाना नहीं कि हर जगह जिथे भी है ना बस। मैं ना एक ताज़ा मिसाल नहीं देना चाह रहा, मेरा दिल करन दिया है। बिल्कुल ताज़ा जी एक मिसाल है, किसी दुकान च गए, अपने क्रिश्चियन दुकान है, ठीक है, वो हफ्ता दो हफ्ता पहले की गल है, उच्ची उच्ची गीत लाए। मैं कहा यार लबे सड़क इधर भी ओ इधर भी हो। मैं कहा यार तुसी अपने घर दुआ करके आया करो, गीत सुन के आया करो, ये तुहाडा बिजनेस है, इनू गिरजा ना बनाओ, गिरजे नू गिरजा रहन दिओ, दुआ नू दुआ की जगह रहन दिओ। तो इधर भी सुनान रहा हो गीत, उधर भी जो लाना ही तो अपने लिए ला लो। कह रहे जी ईमान की गवाही है। मैं क्या मुश्किल च
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਜ਼ਰਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੇ ਬਾਲੇ ਵੀ ਰਵੋ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ। ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲੈ, ਘਰ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈ, ਚਰਚ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਚਰਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਾਤ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਜਾਵੀਂ, ਚਰਚ ਜਾਵੀਂ, ਦੁਆ ਕਰੀ, ਗੀਤ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੀਤ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਏ। ਈਮਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ नहीं है। सांपों की तरह होशियार और कबूतर की मानंद बोले बल। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਈਏ, ਔਰ ਯਸੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਢੰਗ। ਆਮੀਨ। ਹੈ ਸਖਤ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੈ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ ਗਵਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, जहां तुम्हें कबूल ना करें की करो, झाड़ो ते जाओ। ये नहीं कि तुम सुनना नहीं सुनना, मैं तुहानू सुना के जाना, तो फिर तो यही है ना, आ बैल मुझे मार ना। मुकद्दस थोमा रसूल ओदी शहादत हो रहे, ये ना मिलायो कि शहीद लोग ये करते सन ना। ये शहादत है जिन्हां अपनियां जानां सच्चाई लई कुर्बान कीतियां ने। सच्चाई लई, हट धर्मी लई नहीं, सच्चाई लई। अज मैं इहो ही पैगाम देना चाहना जिहड़े चर्च विच बैठे हो या ऑनलाइन सुनन रहे ने, यसू मसीह ने जिहड़ा ढंग सानू इस मुआशरे दे विच जीण दा दस्सिया है, उहदे च जिंदगी है। मौत दा खौफ नहीं है, ये मौत दा खौफ नहीं। यसू ने सानू मौत का खौफ नहीं सिखाया, वो तो आप सलीब पर चढ़ गया ना। लेकिन यसू ने यह जरूर सिखाया कि अपने मोती सूरां दे सामने मत पाओ। आमीन। मैं अज दुआ करना, मुकद्दस थोमा रसूल जेड़ा ईमान इस धरती ते लैके आया, वो ईमान फैले साडी जिंदगी दे नाल, साडी सच्चाई दे नाल, साडी दयानतदारी दे नाल। कदी लोग कहते सन कि मसीही लोग हमेशा सच बोलते हैं, कहते सन कि नहीं गैर कौमां, कहते सन जी एक कसम नहीं खाते, कहते सन ना। ये गवाही है, ये ईमान की गवाही है, सच्ची गल है। और मेरी दुआ है खुदा ये गवाही जिहड़ी जिंदगी की गवाही है, सच्चाई की गवाही है, वो इस धरती ते कायम करे, तो फिर रहेगा नाम सदा तीकर मसीह दा। यह मंगने मसीह यसू दे नाम उत्ते। आमीन।